So latest अभी if you're following me and आपने अभी न्यूज़ वगैरह पे भी देखा होगा, just last week we've completed a show that was Okay. called as खाना और गाना. Or it was produced by Sohila Kapoor, who's Shekhar Kapoor's sister and an actor and director herself and a journalist, and Anuradha Dhar, who belonged to the family who started the initial theaters in Delhi. So the Okay. first step was my baby, actually, Oh, when I really? came back to Wow. India. Yeah, so when I came back to India, so the CEO of FSSAI at that time, Mr. Pawan Agarwal, and me discussed our regulations from because I came from New Zealand and I Hmm. was working with the food industry in New Zealand and the Hmm. regulations. So he wanted to discuss the difference of regulations of food in India and New Zealand. I know you're juggling, but it's not just with two things. It's almost five, six things that you're juggling with, and hats off to Yeah, you. Hats off to you. thank I you. think that's a lesson in time management and life management itself. Yeah, So, time how do you do management it? is very important. Yeah, because I have been experiencing a lot of supernatural since my childhood. So Oh, I'm really? बॉम्बे में एक लोकेशन है मुकेश मिल्स तो वहां Hmm. पे it is quite known to be very haunted. The entire film Acha. industry has experienced some supernatural in Mukesh Mills. In Okay. fact, यहाँ तक ये भी कहानी है और हकीकत भी है कि अगर आपने द मूवी राज देखी है Hmm. तो राज में जो वो चीख है पीछे वो चीख आती है बिपाशा को जो सुनाई देती है वो चीख Hmm. दैट चीख इज एन ओरिजिनल चीख विच वॉज रिकॉर्डेड इन मुकेश मिल्स. अरे बाप रे. One fine day, there was a couple dining on my own table, Hmm. and he said, I just saw you dancing and you're fantastic. I said, Yes, I am. Would you like to join my academy? I have just come back to India and I'm going to start my academy in India. I said, And who Okay. are you? And he's like, I'm Ashley Lobo. I'm from Australia. I just come in Okay. here and I'm looking for good dancers to join me. तेरा जादू के बाद and I did सोचा ना था एशली लोबो के साथ हम लोगों ने सोचा ना था करी. अच्छा, Then सोचा ना था मैं क्या पूरी कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी हमारी थी एशली के गानों साथ की लाइक सारे गानों की. ओ रियली इट्स वन Yeah, ऑफ yeah. माय फेवरेट मूवीज एक्चुअली Yes. सोचा ना था So, वेरी लवली मूवी yeah. So all the songs were our songs, ओके So वो सब था. So वो सब shows चल रहे थे. And then he said, "No, I'm doing a movie, and it's a Yash banner." And I said, "Wow, actually, you got a Yash banner." He's like, "Yeah, the movie is Dhoom and the song is Dhoom." मैं हम्म कहा धूम ये धूम मचा ले क्या गाना है. He's like, "नहीं, ये गाना हम्म है." Then I heard the song and I was like, "Yeah, it's got a real good beats and it might become a good hit." hey that's the spirit that's the spirit Yeah, that's I think it's great. that's what people should learn, if they're watching this they should learn that how to stay motivated, how to stay positive, because you've gone through so much and you still, I think, still banging. लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द MC आदि शो। और मैं आ गया हूं वापस से एक बार एक अमेजिंग गेस्ट के साथ। जो गेस्ट हमारे साथ इस बार जुड़े हैं उनका नाम है अविकल कक्कर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अविकल गाइस। हे अविकल, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Adi, for inviting me and having me here. It's a pleasure. Thank you. सेम हियर। आई हैव बीन आई हैव बीन इन टच विथ यू सिंस अ व्हाइल, और फाइनली आज हम आपको बुला सके शो पे। बहुत मजा आ रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। Oh, likewise. Absolutely. थैंक यू। सो अविकल का आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं, अविकल के बारे में बताते हैं। बहुत कुछ है बताने को, आई डोंट नो मैं छोटी समरी में कैसे स्क्वीज करूंगा, बट जस्ट फॉर यू गाइस टू नो, अविकल इंडियन टेलीविजन और थिएटर की दुनिया के एक जाने माने चेहरे हैं। एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी हैं जो एक म्यूजिकल घराने से आते हैं। इन्होंने कई सारे प्लेज, ब्रॉडवेज, म्यूजिकल्स, टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में काम किया है। कई सारी फिल्म्स, एड्स और स्टेज शोज में कोरियोग्राफी भी की है। पंडित बिरजू महाराज से कथक सीखा है और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स सीखा है श्री राम कला केंद्र न्यू दिल्ली से। ये इसरानी कम्युनिकेशंस के थ्रू कई सारे प्रोजेक्ट्स में हेड ऑफ कास्टिंग रह चुके हैं। कई टैलेंट शोज को जज किया है और 2021 के इंडियन आइडल में भी इन्हें स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था गाइस।
ये केपीएमजी में पूर्व डायरेक्टर फूड सेफ्टी रह चुके हैं, और एफएसएसएआई के साथ नेशनल रिसोर्स और एम्बेसडर के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। एक यूएन मेंबर हैं, और इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के साथ प्लेटफॉर्म भी शेयर किया है एज ए स्पीकर। अविकल एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन अवेयरनेस एक्सपर्ट भी हैं। वाओ अविकल, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग, और I don't know if I covered everything, but feel free to add more. I'm really happy to have you. Amazing guest on the show. Thank you so much. Lovely introduction. Thank you so much for that. Thank you. इतना Yeah, कुछ किया है आपने. I mean, you deserve much more, but I hope I did justice to, introducing you. absolutely. Fantastic. Bang on. It was, Thank yeah, you. Thank you so much. yeah. So let's start with the, like, सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन. इतना कुछ कर रहे हैं आप, इतना कुछ चल रहा है, फूड सेफ्टी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्लासिकल, सिंगिंग, डांसिंग शोज, सो मच दैट यू आर डूइंग. तो लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो अविकल की लाइफ में चल रहे हैं? So latest अभी if you're following me and आपने अभी न्यूज़ वगैरह पे भी देखा होगा, just last week we've completed a show that was ओके. called as खाना और गाना. Or it was produced by Sohila Kapoor, who's Shekhar Kapoor's sister and an actor and director herself and a journalist, and Anuradha Dar, who belonged to the family who started the initial theaters in Delhi. ओके. And उन्होंने produce किया था. The concept was given by Sohela, as you mentioned in my introduction, that I belong from the food as a food curator as well as from the performing arts. So Sohela mentioned that why don't you blend both these professions together? या. And that's where this concept arose. And then I started my research. So वो खाने गाना का हमने एक शो किया जिसमें डिफरेंट वर्ल्ड कुजीन्स की हिस्ट्री और ओरिजिन्स बताए, ऑथेंटिसिटी बताई, और उनसे जुड़े गाने बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या क्या थे, तो वो शो हमने अभी किया, which was a mega hit. It was not expected to be a housefull, being it was a Thursday, हम्म. or but it was more than a house full. People were वाओ. standing and watching the show. So कांग्रेट्स. thank you. एंड तो अभी जस्ट वो खत्म किया है. एंड सोहेला के साथ अभी इसी साल हम लोग ने 2-3 शोज और भी किए हैं. सो आई हैव बीन एफिलिएटेड विथ हर ओवर अ डेकेड नाउ. वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ शोज टुगेदर इन थिएटर्स. ओके. एंड तो अब वो खत्म किया है. अब नेक्स्ट पड़ाव हमारा मार्च के महीने में हम लोग एक और शो प्लान कर रहे हैं जिसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं. एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड माय रिसर्च. सो ओके. आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग द टॉपिक वी आर डूइंग द शो ऑन. वो अभी रहने दीजिए. बट हाँ, सो वी आर प्लानिंग टू कम अप विद अनदर शो बाय द मंथ ऑफ मार्च. तो उसका अभी वो चल रहा है. ओके. एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा साइडलाइंस में एज फ्रॉम द फूड बैकग्राउंड. So food safety auditing, food safety trainings, and other ISO certification trainings, because I'm an ISO certified principal auditor and a CQI IRCA member. ओके. So as a principal auditor, I do calibrations and trainings for the auditors and two would-be auditors. So तो उनकी ओके. ट्रेनिंग्स होती हैं. और एफएसएसआई से जैसे आपने बताया एफिलेटेड, तो हमारी एफएसएसआई की ट्रेनिंग्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज फास्टैग ट्रेनिंग्स. So the ओके. FOSTEC was my baby actually ओ when I रियली? came back to वाओ. India. So when I came back to India, so the CEO of FSSAI at that time, Mr. Pawan Agarwal, and me discussed our regulations from, because I came from New Zealand and I हम्म. was working with the food industry in New Zealand and the हम्म. regulations. So he wanted to discuss the difference of regulations of food in India and New Zealand and Dubai. ओके. I said there was a lot to do in India yet. ऑफ कोर्स. So we started and then fast track trainings वगैरह developed हुई, और अब today it has become a mandatory training in India for all the food sectors. ओके. And then I contributed to a lot of food regulations in India. इसीलिए, as you said, Mr. Koval के साथ platform भी share हुआ where we हम्म. discuss about food defense and food frauds. ओके. And yeah, so तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स वगैरह कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं. सो हम्म. फिलहाल मेरे वही ट्रेनिंग्स भी चलती हैं साइड बाय साइड, और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी पैरेलली आई मैनेज बोथ ऑफ देम. सो आई कीप जगलिंग. या.
I know you're juggling, but it's not just with two things. It's almost five, six things that you're juggling with, and hats off to Yeah, you. Hats off to you. thank I you. think that's a lesson in time management and life management itself. Yeah, So, time how do you do management it? is very important. Even in my trainings for management, so I have been guest lecturers for Amity University. I every year travel to Kolkata for IIM students. We deliver training. So abhi, next year की भी Okay. date आ गई 29th of Jan. I'll be traveling to IIM Kolkata. So Wow. every year I deliver training for management system for IIM students. And तो उनको भी मैं I always tell them, and this question is not a new question to me. ये बहुत हर कॉर्पोरेट में या हर जगह मुझे पूछा जाता है। हाँ, केपीएमजी में लोग मुझे पूछते हैं, सर हमको केपीएमजी में अपने काम से काम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, आप तो इतना कुछ कैसे कर लेते हो? exactly. My only one line answer to everybody is time management is only possible if we stop making excuses. Hmm. जहां हम एक्सक्यूज ले आते हैं वहां टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाती है। तो रीजनिंग और एक्सक्यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वेरी थिन हेयरलाइन डिफरेंस। बट वी Hmm. मे हैव अ रीजन फॉर नॉट डूइंग अ टास्क और नॉट कंप्लीटिंग अ टास्क, बट most of the times we take our excuses of not completing the time management properly or doing the job on time as desired. We Hmm. want to do things, लेकिन हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो Hmm. हम लोग बोलते हैं ना विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, आई एम Hmm. ट्राइंग टू डू। आई डोंट बिलीव इन विल पावर्स, आई बिलीव इन डिसीजन मेकिंग। इफ Hmm. यू हैव डिसाइडेड, जस्ट गो फॉर इट। इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड, तो आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते ही रहेंगे, वो विल पावर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वो Hmm. आप, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया कि वो काम करना है कि नहीं करना है। Hmm. जैसे स्मोकर्स होते हैं, आप उनको बोलते हैं अच्छा स्मोक को छोड़ दो। हाँ हाँ, हम 5 पैकेट पीते थे, अब हम 3 पैकेट पे आ गए हैं, अब हम दो पिएंगे। वो जब तक एक पे आते हो करेक्ट। तब तक वापस 10 पे चले 10 जाते पे हैं। चले जाते, करेक्ट करेक्ट यू नो, करेक्ट। सो आपका डिसीजन है, आपने या। डिसाइड कर लिया छोड़नी, छोड़ दो, बस बात खत्म। व्हाई डू वांट टू प्ले द फूल अराउंड, एंड यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज योरसेल्फ। तो वो चीज मैं नहीं करता हूँ। तो उससे जब मुझे डिसाइड करना तो कि अब ये काम मुझे इस समय करना है और हम कर सकते हैं, तभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर मुझे लगता है ये काम हम नहीं कर पाएंगे उस समय, आप उसको लो ही मत। यू नो, हाँ, ले करके बीच में छोड़ना डजंट मेक सेंस। सो दैट्स हाउ आई वेरी मैनेज माई। ट्रू। It just reminded me of this latest song that I keep listening to. It's not really like the lady is not really singing, but she's just speaking. And one of the things she says that if you don't have time, stop watching TV. Like like simple things, right? Like life Yeah, is simple. That's the way it is. Like people complicate it by, as you rightly said, messages कुछ अपने excuses बना बना के और नहीं करके. I'm so happy because sometimes I also do a lot of things in like this podcast and a lot of things that I yeah. do, and I also understand that इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग बना देते हैं उस चीज को। नहीं नहीं अगर नहीं, आपका खुद का एक डिसीजन आपने लिया है और जिसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय आपने कर लिया, तो उसके एब्सोल्युटली। पीछे आपको उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपके खुद के डिसीजन को। इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। एंड माइंड यू, आई डोंट स्टॉप वॉचिंग टीवी। टीवी मेरा चलता है। मैं सारे नेटफ्लिक्स के रियलिटी शोज, कोई डॉक्यूमेंट्रीज, मुझे मेरा डोज है एक हॉरर मूवी का। सो अच्छा। एवरी डे आई हैव टू वॉच अ हॉरर सीरीज और अ हॉरर मूवी, नहीं तो मुझे खाना नहीं वाह। पचेगा। वाह। सो या, बिकॉज आई हैव बीन experiencing a lot of supernatural since my childhood. So Oh I'm really? quite, yeah, yeah, yeah. So I'm very much into it. Yeah. Do you want to go deeper into it? Like what do you mean by that? I mean, so yeah, I mean, I have been into the spiritual world, Hmm. and that's where I am a very firm believer of spirituality. So I am not religious at all. I'm very Hmm. spiritual in nature. सो एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन से काफी। बचपन में लोग बोलते थे अच्छा ऐसी ड्रामा है, स्टोरी टेलर Hmm. है तो स्टोरी बना रहा है। इवन माय पेरेंट्स इस वजह से बहुत स्टोरीज बनाते हो तुम। Hmm. यू नो, Hmm. Hmm. एंड eventually then my own parents, my brother, other people around me, they started experiencing themselves with me that yes, Okay. this is happening. So my mother started experiencing a lot of things along with me, and like तुम्हारे साथ जब हम होते हैं तो ये experience क्यों हो रहा है? मतलब Hmm. because it's there. Hmm. Then my friends in Mumbai,
they experience a lot in my house and so जैसे एक बार हम लोग तीन जने मेरे फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए थे मेरे ड्राइंग रूम में सो आई वाज सिटिंग हियर माय वन फ्रेंड वाज हियर and the other was sitting next across to us and the door of my drawing room my house was next adjacent to me हम्म। हम लोग अपने कुछ बात कर रहे थे एंड ऑल ऑफ द सडन हम तीनों को ऐसा लगा एक साथ कि किसी ने पूरा दरवाजा खोला है हम लोगों को पीकन किया है और दरवाजा बंद किया है एंड वी ऑल थ्री स्टॉप द कॉन्वर्सेशंस एंड एट द सेम टाइम हम तीनों ने पलट करके दरवाजे की तरफ देखा और वहां कोई नहीं था तो और हम तीनों एक दूसरे से अरे कोई आया था क्या कोई खुला हम्म। कोई आया मैंने कहा पता हम्म। नहीं दरवाजा तो मैंने बंद किया था हम्म। एंड देन आई गॉट अप टू सी एंड द डोर वाज स्टिल लॉक्ड इनसाइड एंड वी वर ऑन द टॉप फ्लोर हम्म। और जब मैंने दरवाजा खोला तो एलिवेट और उस फ्लोर पे सिर्फ दो अपार्टमेंट्स थे हम्म। और साइड वाला अपार्टमेंट मेरा खाली था तो अच्छा। ऊपर कोई भी नहीं था सिवाय हमारे और लिफ्ट ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे थी तो हम्म। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे एर्थ फ्लोर से इतनी जल्दी नहीं जाती और हम्म। छत का दरवाजा बंद है उसकी चाबी भी मेरे पास रहती है तो कोई छत पे भी नहीं पहुंच सकता हम्म। तो कोई अगर आया भी तो गया कहाँ and then we three of us kept discussing, and he like, because you always tell these things, but we started experiencing these things with you. So many of my student people, एक फ्रेंड है मेरा वो तो बिल्कुल सुपर नेचुरल भगवान रिलीजन किसी चीज में ही इज नॉट ही इज एन एथिस्ट ही डजंट अच्छा। बिलीव इन गोस्ट ही डजंट बिलीव इन एनीथिंग बट ओके। ही लेफ्ट माई हाउस इन अ पार्टी एंड देन रास्ते से ही सेड कि ऐसा ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ सो लाइक या देयर इज एक्सपीरियंस सो या सो इसलिए आई ऑल्सो वॉच हॉरर मूवीज टू एंजॉय एंड सी कुछ है कि नहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं पर तो आपको डर नहीं लगता फिर, बिकॉज अगर इतना कुछ होता रहता है तो एक आदमी तो डर जाता है ना उसको। अब मुझे डर किसी चीज से भी नहीं लगता ओके। सो या सो था शुरू में लगता था कि क्यों आई इनफैक्ट आई वुडंट कॉल इट फियर आई वुड कॉल इट क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं हम्म। और जानूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये मैंने हम्म। देखा तो ये क्या देखा क्यों देखा तो वो क्यूरियस माइंड ज्यादा था ना कि फियर माइंड था यू नो तो बहुत सी ओके। मूवीज हम लोग शूट करते थे सेट्स पे बहुत कुछ होते थे तो लाइक एक बॉम्बे में एक लोकेशन है मुकेश मिल्स तो वहां हम्म। पे इट इज क्वाइट known to be very haunted. The entire film अच्छा। industry has experienced some supernatural in Mukesh Mills. In ओके। fact, यहाँ तक ये भी कहानी है और हकीकत भी है कि अगर आपने द मूवी राज देखी है हम्म। तो राज में जो वो चीख है पीछे वो चीख आती है बिपाशा को जो सुनाई देती है वो चीख हम्म। दैट चीख इज एन ओरिजिनल चीख which was recorded in Mukesh Mills. अरे बाप रे, Yeah, गूज बम्स हो it रहे was recorded live at Mukesh Mills. वो चीख रिकॉर्ड हुई थी और वही चीख को यूज किया है मूवी में हैं। अच्छा। रियली? हाँ यस ओ माय गॉड, दैट्स लाइक, दैट्स अ क्रेजी स्टोरी। या ओके। ओके। सो आई थिंक आप आपकी स्पिरिचुअलिटी पे वी विल कम बैक, बिकॉज आई हैव वन और टू क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क। बट इवन बिफोर दैट, इन जनरल, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, और मतलब कास्टिंग डायरेक्शन से लेके कोरियोग्राफी, और फिर कॉर्पोरेट जॉब, स्पिरिचुअलिटी, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी आप जुड़े हुए हैं, यूएन के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो मेनी थिंग्स जो आप कर रहे हैं और कर चुके हैं, करते रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, लाइक हाउ योर एसोसिएशन विद ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स स्टार्टेड। कैसे आपने ये रियलाइज किया कि अच्छा, मुझे मुझे परफॉर्मिंग आर्ट पसंद है, तो उसमें एंटर करे। फिर कैसे ये सब, कैसे आज तक की जर्नी, कुछ बताइए उस बारे में। खैर जब मैं 1.5 साल का था ओके। तब मैंने सबसे पहली चीज लाइफ में सीखी है और जो मुझे होश में है इवन आई रिमेम्बर दैट ईयर एंड हाफ और 2 years ऑफ माई लाइफ आई हम्म। रिमेम्बर दैट स्टेज तो द फर्स्ट थिंग आई लर्नड was to play a gramophone record. तब आपको याद होगा पुराने वो एक रिकॉर्ड यस। प्लेयर्स आते थे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स यस। और उसमें यस। यस। सुई रखी जाती थी हम्म। और बहुत
अडल्ट्स भी सुई से स्क्रैच कर देते थे रिकॉर्ड्स। हम्म। बट मुझे रिकॉर्ड चलाना मम्मी ने सिखा दिया था। हम्म। और पढ़ना लिखना आता नहीं था 1.5 साल की उम्र में, लेकिन मुझे रिकॉर्ड की शक्ल देख के पता होता था ये कौन सा रिकॉर्ड है, इसकी कौन सी अच्छा। साइड पे कौन सी लाइन पे मेरा वाला गाना है। एंड आई कुड ओह। प्ले द सॉन्ग्स एंड माई रिकॉर्ड्स विदाउट डिस्टर्बिंग माई मदर। वाह। एंड मैंने चलना लेट शुरू किया। हम्म। 1 साल की उम्र में मैंने चलना शुरू किया था। लेकिन चलने के साथ साथ ही मैंने ठुमके लगाने शुरू कर दिए थे। सो आई हैड स्टार्टेड अच्छा। डांस एट द एज ऑफ 2। और ओके। प्रोफेशनल फ्रंट मेरा 4-5 साल की उम्र से मेरा प्रोफेशनल फ्रंट शुरू हो चुका था। हम्म। तो बिकॉज आई वॉज इनटू डांसिंग एंड माई मदर हर सेल्फ वॉज अ सिंगर, तो उनको हम्म। मेरे में वो म्यूजिकल टच ऑलरेडी पता चल चुका था कि हाँ इसमें एक म्यूजिकल टच है। एंड ओके। वहाँ हम लोग तब बंगाल में रहते थे। और ओके। वहाँ पे देयर वाज अ टीचर फ्रॉम मणिपुर एंड शी ओके। यूज्ड टू होस्ट अ लॉट ऑफ शोज। हम लोग का वहाँ पे क्लब था हम लोग का, और क्लब में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते थे, एंड शी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ शोज। एंड हम्म। आई वांटेड टू गेट एफिलिएटेड विथ हर। तो मम्मी जब उनके पास लेके गई तो शी फर्स्ट रिफ्यूज कि नहीं नहीं, ये तो लड़का है, हमसे लड़की लोगों अच्छा। को सिखाता है, इनको कैसे डांस सिखाएगा। बट हम्म। आई हम्म। somehow I knew these tactics even then। तो मैंने उनके दोनों लड़कों के साथ आई became friends and I got an entry to their house। और फिर वहां जाकर के मैंने एकलव्य बन करके दूर से सीखना शुरू किया। अच्छा। एंड फिर एक दिन कुछ हुआ ही बात, और मैंने कोई दीदी डांस कर रही थी एंड आई सॉ हर स्टेप गोइंग रॉन्ग एंड आई हम्म। करेक्टेड हर। एंड शी ओके। लाइक तुमको कैसे पता है ये? एंड देन हम्म। आंटी वाज लाइक तुम कब सीखा ये सब? मैं कहा हम तो सीख रहे देख करके। एंड देन शी हम्म। टॉट मी एंड देन शी लव्ड इट। एंड उसके बाद मेरी वो जर्नी उनके साथ शुरू हुई। तो आई स्टार्टेड लर्निंग फोक डांसेस ऑफ इंडिया। जो सबसे ओके। पहला डांस मैंने सीखा वो नागा डांस था, बैम्बू डांस था, मणिपुरी डांस था। एंड देन वहीं पे एक और ओके। टीचर थी, शी वॉज इनटू क्लासिकल ऑफ रविंद्र संगीत, वो शांति निकेतन से थी। तो उनके वाओ। साथ फिर क्लासिकल रविंद्र संगीत में हमने शुरू करा। और वहीं पे मैंने क्लासिकल वोकल सीखना बंगाल में ही शुरू कर दिया था। तो आई हैड स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल वोकल इन बंगाल, क्योंकि वहाँ पे भी स्कूल्स में आई यूज्ड टू परफॉर्म इन स्कूल्स एंड गाने वाने गाता था। बट देन वी शिफ्टेड टू दिल्ली, और दिल्ली आकर के फिर कथक केंद्र में पंडित बिरजू महाराज जी के यहाँ कथक सीखा। फिर वहीं पे श्री राम कला केंद्र में मैंने क्लासिकल वोकल सीखना शुरू किया। वहीं पे फिर थिएटर्स शुरू किए, मंडी हाउस में ही पूरा थिएटर हब है, एनएसडी वगैरह सब है। हम्म। एनएसडी गए, फिर वहाँ पे यासिन खान का एक थिएटर ग्रुप था, उनके साथ इंदू आर्ट्स थिएटर उनके साथ लगे। तो काफ़ी स्ट्रीट शोज वगैरह करे। एंड तो तब से ये सब शुरू हो चुका था। एंड ओके। साइड बाय साइड एजुकेशन भी चल रही थी, बिकॉज माई इंटायर फैमिली इज इनटू एकेडमिक्स। तो मेरे पापा भी अच्छा। इंजीनियर हैं, मेरे मम्मी की तरफ एवरीबडी इज अ डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर्स एंड वकील, एम्बेसडर्स एंड ऑल। सो academics was very much there. My own grandfather was an IFS। so ओके। तो वो था, तो पढ़ाई तो थी, एंड एवरीबडी हैड एस एक्सपेक्टेशन कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। अच्छा। और तो पढ़ाई चलती रही। एंड तो साइंस से प्यार था मुझे, तो मैंने हम्म। मेडिकल ही लिया था। लेकिन अच्छा। फिर मेडिकल लेने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बनने चला तो सब कुछ छूट जाएगा मेरा। हम्म। सो आई एंटर्ड इनटू माइक्रोबायोलॉजी एंड देन होटल मैनेजमेंट। तो वहां से माइक्रोबायोलॉजी और होटल मैनेजमेंट से मेरा फूड का वो आ गया। ओके। एंड बचपन से ये भी था कि मेरे टेस्ट बड्स वर वेरी रिफाइंड एंड डेवलप्ड। तो घर में ओके। कुछ भी खाना बनता था तो मम यूज्ड टू आस्क मी टू टेस्ट द फूड। और हमारे हम्म। फूड भी हमारे घर में बहुत है, मेरे बोथ साइड्स, माय मदर साइड एंड माय फादर साइड, दोनों तरफ से खाने का बहुत ज्यादा है हमारे घर में। यू नो, हम्म। हम पंजाबी खाते पीते घर की फैमिली है। हाँ, कक्कर या ऑफ कोर्स। तो वो था। तो हम्म। वो सब आई न्यू कि खाना है मेरे अंदर। तो उस तरीके से ये शुरू हुआ सिलसिला। और तब मैंने अपनी जॉब पकड़ ली थी पहली, पिज्ज़ा हट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो दैट ओके। वाज माय फर्स्ट जॉब एज अ पायनियर फॉर पिज्ज़ा हट। और अच्छा। तभी मुझे पता चला कि सम न्यू कपल हैज कम टू इंडिया हु इज ऑडिशनिंग फॉर अ न्यू शो। हम्म। And I went there and we met them, and that was India's most wanted, Shoaib Ilyasi and Anju Ilyasi। ओके। ओके। तो उनके साथ मैंने पायलट एपिसोड मैंने शूट किया था दिल्ली में ही, हम लोग ने एज एन एक्टर आई शॉट दैट। अच्छा। एक्टिंग करने के बाद उसमें अंजू इलियासी एंड मी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। हम्म। एंड अंजू could realize my creative ability, so she हम्म। said, why don't you join me in my creative team and you help us in the ओके। creative side। ओके। तो तब से मैं उनके साथ क्रिएटिवली, अंजू एंड शोएब इलियासी के साथ आई
वेंट इनटू द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड। फिर सबको पता है जो भी शोएब इलियासी का केस हुआ, मर्डर केस एंड ऑल, एंड ही वाज अरेस्टेड एंड एवरीथिंग। तो वो शो बंद हो गया। हम्म। बट इन द मीनवाइल क्या हुआ, पिज्जा हट में वी यूज्ड टू हैव डांसिंग। वहाँ पे अच्छा। एंटरटेनमेंट होता था कस्टमर्स का, अच्छा। और वो भी मैं ही कोरियोग्राफ करता था। तो वो हमने डांस करते थे, एंड वन फाइन डे देयर वाज अ कपल्स डाइनिंग ऑन माय ओन टेबल, हम्म। and he said, I just saw you dancing and you're fantastic. I said, yes, I am. Would you like to join my academy? I have just come back to India and I'm going to start my academy in India. I said, and ओके। who are you? And he's like, I'm Ashley Lobo. I'm from Australia. I just come in ओके। here and I'm looking for good dancers to join me. ओके। So वहां से वो ऑफर, आई आस्क्ड हिम व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ डांस। ही सेड बैले एंड जैज। मैंने कहा बैले के लिए तो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। तो ही लाइक, नो डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट, यू ओके। नो। एंड दैट इज हाउ आई गॉट एफिलेटेड विद एशली लोबो। ओके। And then we started opening his centers and we learned ballet, jazz, different ballroom dancing of salsa, foxtrot, balls and all. तो फर्नांडो जो आज एक और खुद जाने माने नाम है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, तो हम्म। फर्नांडो हैड कम फ्रॉम अर्जेंटीना। वो एशले के साथ एफिलेट हो गए थे, तो उनकी एकेडमी हम लोग को बैले वही सिखाते थे। और ओके। तो फर्नांडो के साथ सीखा। और तो वहीं से डांस वगैरह की यहाँ से जर्नी शुरू हो गई, शोज वगैरह की। एंड देन आई ड्रिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम एशली एंड आई स्टार्टेड माई ओन अकेडमी। ओके। और मेरी अपनी खुद की एकेडमी का मैंने शो किया, एस डांस एकेडमी नाम था। एंड आई ओके। स्टार्टेड माई ओन एकेडमी, और काफी मेरे स्टूडेंट्स हो गए थे। और फिर हमने एक पहला शो किया था श्रीराम सेंटर न्यू दिल्ली मंडी हाउस में। वो हम्म। शो देख करके टी सीरीज पीपल वर वेरी हैप्पी एंड दे इनवाइटेड मी टू मीट देम। एंड ओके। उस जमाने में आपको याद होगा, काफी रीमेक ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स बन रहे शुरू हुए थे, और रीमिक्स का जमाना शुरू हो गया था। एंड यस। कुमार सानू एंड सोनू निगम, कविता पौडवाल, ये लोग हम्म। सब ये रीमेक सॉन्ग्स गा रहे थे। तो यस, यस, टी यस। सीरीज ने इनके वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे फॉर द मासेस, एंड दे ओके। वांटेड मी टू कोरियोग्राफ। एंड देन आई ओके। सेड कि मुझे कैमरा का कुछ नहीं मालूम है, आई हम्म। नीड द स्टेज। हम्म। देन दे सेड डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो ओके। उनके साथ नोएडा टी सीरीज में आई गॉट एफिलेटेड विद देम एंड आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर देयर म्यूजिक एल्बम्स। उन्होंने एक पहले गाना दिया था मुझे, हम्म। जब हम जब होंगे का रीमेक था। और वो अच्छा। एक गाना उन्होंने मुझे दिया था, एंड दैट बिकेम अ मेगा हिट, द रीमेक ओके। वर्जन। तो उन्होंने ओके। पूरी एल्बम मुझे दे दी थी कि आप ये पूरी ओके। एल्बम। और ओके। फिर उसके बाद एक और एल्बम, तो वी डिड 3 एल्बम्स टुगेदर। और उसी वाओ। एल्बम में एक मेरा मॉडल था, सो ही सेड कि व्हाई डोंट यू मूव टू मुंबई, आप इतना अच्छा करते हो। हम्म। तो मैं कहा, मुझे मुंबई में कौन जानता है, आई हम्म। डोंट नो एनीबडी, तो मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। ही सेड ओके, आई हैव अ फ्रेंड, आप उनके पास जाके रह सकते हो। तो उन्होंने मैं अपने फ्रेंड से इंट्रोडक्शन करवाया, देन आई ओह, मूव सो टू स्वीट। मुंबई। हम्म। हाँ, एंड टुडे ही हिमसेल्फ इज अ वेरी रिनाउंड फोटोग्राफर इन मुंबई। ओके। Sachin. He's a very, very renowned photographer, ओके। celebrity photographer. ओके। तो तो देन आई मूव टू मुंबई, और मुंबई पहुंचते ही उसके घर में ही रह रहे थे। और हाँ। उसके अपार्टमेंट में ही सरोजी भी रहती थी। अच्छा। और मेरी वाओ। सरोजी से पहले से जान पहचान हो चुकी थी, क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड अ जॉब इन जेपी पैलेस होटल इन आगरा आल्सो। हम्म। एंड वहां पे वाशु भगनानी वॉज शूटिंग तेरा जादू चल गया। ओके। एंड somehow I had known वाशु भगनानी, सो उनसे जब मिले तो ही सेड व्हाई डोंट यू डू समथिंग विद अस। मैं कहा, मैं हम्म। क्या करूँ, आप लोग की टीम ऑलरेडी है। नहीं नहीं हम्म। नहीं, आप सरोजी से मिलो, आप कुछ करो। एंड देन आई मेट सरोजी। तो 2 गानों में उन्होंने मेरे साथ हेल्प लेकर के, हम लोगों ने मिल करके कोरियोग्राफी भी करी थी ओह, उस वाओ। मेरी। वहां से वो तेरा जादू चल गया का हुआ। एंड अच्छा। फिर जब बॉम्बे आया तो सरोजी से मैं दोबारा मिला वहां पे। हम्म। और अगले ही दिन मुझे जस्सी जस्सी कोई नहीं में ब्रेक मिल गया था। ओके। तो हम लोग, हम मैं और मेरा फ्रेंड जो जिसके घर पे था, हम लोग नीचे उतरे, उसने देखा, अरे हम्म। कार देखी, तो उसने बोला, अरे टोनी आया हुआ है। मैं कहा, हुज टोनी? अरे टोनी सिंह इज द प्रोड्यूसर फॉर जस्सी जस्सी। मैं हम्म। कहा, ओह, जस्सी वाज अ बिग शो दैट टाइम, जब यस। नया नया शुरू हुआ था, एंड इट वाज अ यस। बिग। सो ही आई सेड, ओ ओके, हाउ कम ही इज हियर? लाइक उनका ऑफिस ऊपर है। तो मैं उनसे मिल करके आता हूँ, एंड वो वाओ। मिस्टर इंडिया था, मिस्टर इंडिया पास आउट। मैं कहा, उसके साथ मैं क्या करने जाऊंगा वहां पे, मेरी शक्ल और हम्म। उसकी शक्ल लेकर के। बट वी वेंट, एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर वाज लाइक कि अविकल, आपके लिए एक कैरेक्टर है, इफ यू वांट टू प्ले। अच्छा। देन ही गेव मी अ 3 पेज स्क्रिप्ट। ही सेड, आप 5 मिनट में दे रहा हूँ, आप याद करके रखो, मैं आता हूँ। देन ओके। ही केम एंड ही टुक माई ऑडिशन, ही स्टार्टेड लाफिंग, एंड आप हम्म। क्यों हंस रहे हो, गलत है तो बता दो। हम्म। नहीं, हंसी आनी चाहिए, इसलिए मैं हंस रहा हूँ नेचुरली, हम्म। तो इसका मतलब यू आर गुड।
And then I met हम्म। Tony and Dia and they signed me for जस्सी जैसी कोई नहीं. अच्छा। And तो वाओ। फिर वहां से then I did a thumbs up का commercial with Bipasha. ओके। So it was a Bengali commercial for thumbs up. वो बंगाल में काफी चला. एंड देन उन्हीं की टीम ने मुझे फिएट पैलियो का एक एड ऑफर किया था, विच वाज अ सोलो एड. आई वाज द ओनली मॉडल इन दैट. एंड ओके। दैट एड गॉट नॉमिनेटेड फॉर कांस. ओ रियली? वाओ। या तब फिएट पैलियो कार लॉन्च हो रही थी. ओके। और उन उसके कांस में नॉमिनेशन के बाद इट बिकेम अ बिग थिंग एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रहलाद कक्कड़'s ऑफिस. हम्म। एंड देन आई डिड द लॉन्च ऑफ टू मैगी सॉस के न्यू फ्लेवर्स एज अ मॉडल. अच्छा। ओके। फिर प्रहलाद कॉल्ड मी, इज लाइक अविकल आप एक और एड है पेप्सी का, यू शूट इट. मैं कहा पेप्सी आई डोंट थिंक आई कैन डू बिकॉज आई हैव डन थम्स अप. सो ही लाइक नहीं, वो यस। पुरानी बात हो गई, अब आप आओ. तो गए एंड देन वो पेप्सी की टीम ने बोला कि अरे अविकल आप तो थम्स अप कर चुके हैं, आप हमारा मॉडल कैसे कर सकते हो. एंड हाँ सेड एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई टोल्ड यू. सेड ठीक है, आप जाके कैंसलेशन करवा लो हम्म। एंड फिर वापस आओ. तो आई हम्म। सेड जाकर के कैंसलेशन फीस ली एंड आई केम बैक. एंड लाइक अच्छा। आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहा, घर जा रहा हूँ और क्या करूँ. नहीं नहीं, अब आप इस एड को कोरियोग्राफी करो. अच्छा। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा. He was such a sweetheart, Prahlad Kakkar. He's या। I know he's so good. तो फिर उनके साथ वो करना शुरू कर दिया. फिर और मूवीज वाशु के साथ भी हमने. फिर तेरा जादू के बाद एंड आई डिड सोचा ना था, एशले लोबो के साथ हम लोग ने सोचा ना था करी. अच्छा, देन सोचा ना था मैं क्या? पूरी कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी हमारी थी एशले के गानों साथ, की लाइक? सारे गानों की. ओ रियली? इट्स या वन ऑफ या माय फेवरेट मूवीज एक्चुअली, Yes, सोचा ना था। so वेरी लवली मूवी। so all the songs were our songs. And उसके बाद फिर बस इतना सा ख्वाब है and all. हम्म। So then the journey started and then Dhoom happened. Again, Ashley Lobo got the offer and he called me from Delhi. He's like, Avikal, are you in Mumbai? I said, yes. What are you doing these days? I'm doing some serials. मेरे जस्सी के बाद पालकी, प्यार के दो नाम, एक राधा एक शाम, मेरी आवाज को मिल गई रोशनी, एमटीवी फुल्ली फालतू बड़ा मेरा हिट हुआ था. इट वाज स्पूफ ऑन जस्सी जस्सी. तो उसमें अच्छा। आई प्लेड मैडीज कैरेक्टर. ओके। And it just happened once Rajesh Khera, who did the original Maddie character. So we हम्म। both were there, and some children came up to me, Maddie uncle, autograph. And like, Maddie uncle, yeah. हम्म। So Rajesh was like, नहीं आज से तू ही Maddie uncle है. ओके। So वो सब था. So वो सब shows चल रहे थे. And then he said, no, I'm doing a movie and it's a Yash banner. And I said, wow, actually you got a Yash banner. He's like, yeah, the movie is Dhoom and the song is Dhoom. मैं हम्म। कहा धूम, ये धूम मचा ले क्या गाना है. He's like, नहीं ये गाना हम्म। है. Then I heard the song and I was like, yeah, it's got a real good beats and it might become a good hit. And then his team was already in Mumbai, so we just contributed. And so it was mainly Ashley's baby, but yeah. ओके। And so Dhoom became a mega hit. हम्म। इस तरीके से मेरी बस जर्नी वहां पे शुरू हो गई. हम्म। एंड कंटिन्यूड. ऐसा ही चलता रहा और साथ में थिएटर्स भी चलते रहे. और गाने का भी मेरा था शुरू से. तो हम्म। गानों में मेरा जो फोटे है दैट आई सिंग फॉल्सेटो वॉइसेस एंड फीमेल वॉइसेस. तो मेरे हम्म। शोज में ही हिट होने शुरू हो गए थे. सो आई यूज्ड टू डू दोज सॉन्ग्स. सो व्हेन आई लेफ्ट इंडिया एंड आई मूव टू न्यूजीलैंड, तो वहां पे भी म्यूजिक, मतलब तब मेरे शोज काफी चल रहे थे. सो व्हेन आई मूव, पीपल इन न्यूजीलैंड स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी फ्रॉम टेलीविजन. अच्छा। वहां पे शोज मुझे मिलने लग गए थे. एंड वहां पे सम इवेंट ऑर्गेनाइजर ही नेम मी एज वॉइस ऑफ शारदा. हम्म। मैं कहा कि आप वॉइस ऑफ शारदा हो क्योंकि आप शारदा जी की आवाज आपकी बहुत मैच करती है उनके गाने. ओके। तो and that is how he told Sharda ji, and then Sharda ji heard me and she became a fan. तो शारदा जी के साथ बड़ा अच्छे रिलेशंस थे, फिर उनके साथ वाओ। बातचीत काफी. वाओ। इनफैक्ट मैंने केम बैक अभी 2-3 साल पहले भी शारदा जी के साथ मेरा प्लान था एक शो करने का. बट सून शी पास्ट अवे. तो नेक्स्ट ईयर उनकी डेथ एनिवर्सरी पे वी डिड अ मेगा शो इन बॉम्बे, ओके। ट्रिब्यूट टू शंकर जयकिशन एंड शारदा. ओके। वाओ। So that's how it all started. बट वन क्वेश्चन आई थिंक एवरीवन विल आस्क यू कि इतना सब यहाँ चल रहा था तो फिर न्यूजीलैंड क्यों शिफ्ट हुए यहाँ पे इतना कुछ छोड़ के? Yeah, that that was a turning point in life. Sometimes आपके हाथ हम्म। में सब कुछ नहीं होता है. हम्म। तो 94 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था. और ओ। मेरा नी वाज ब्रोकन. ओके। एंड मैं स्विमर भी था. आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर स्विमिंग. अरे एंड बाप रे। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन बट डॉक्टर्स हम्म। हैड टोल्ड मी कि अब आप स्विमिंग बैडमिंटन डांस वगैरह कुछ नहीं.
हम्म, स्विमिंग और बैडमिंटन तो फिर भी छोड़ दिया, हम्म, बट डांस जो पैदा होते से मैं कर रहा था तो वो कैसे छूटता। एंड आई कंप्लीटेड माय कथक एंड बैले एंड जैज, इन सब में फुटवर्क बहुत है। करेक्ट। तो वो कहीं एग्रीवेट हो गया था। बाय 2006 इट वाज टू मच। एंड सो तब तक मेरी बॉम्बे में आई हैड ओपन 7 सेंटर्स फॉर माय डांस एकेडमी। तो नोएडा में भी चल रही थी डांस वाओ। एकेडमी, और बॉम्बे में मेरे 7 सेंटर्स, राइट फ्रॉम कांदिवली टू बांद्रा, 7 सेंटर्स वर रनिंग। एंड सारे मतलब उस जमाने के सब लोग, राखी एंड राखी सावंत वाज देयर हम्म, विद माय एकेडमी, शी आल्सो केम टू माय एकेडमी, एंड हम्म, मोनी गांगुली एंड ये लोग सब आए। तो तो इतना ज्यादा वो काम भी ले लिया था और पैर पे हम्म। प्रेशर भी पड़ रहा था, तो उससे फिर मेरा पैर एकदम कोलैप्स करा एक दिन, एंड आई ओ, हैड टू अंडरगो सर्जरी। तो मुझे 8 मंथ्स आई वाज अवे। तो जितने मेरे को अच्छा। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे उस समय, मेरा लास्ट मैंने कोरियोग्राफी करी थी अमूल मिल्क के ऐड की, जो आज भी आप टीवी पे देखते हैं, अमूल ओके। दूध पीता है इंडिया, जो ऐड पीता है आता इंडिया। है। ओके। तो वाओ। दैट इज माय एड, सो दैट वाज माय लास्ट ओ, कोरियोग्राफी उस समय। ओके। हाँ। और तो उसके पहले सतमोला वगैरह भी किया था, वो युविका चौधरी को मैंने लिया था उसमें। हम्म। तो युविका वाज, आई सॉ द दैट वाज द फोटोज या। ब्रेक एक्चुअली, युविका का। तो उसके बाद तो उस समय बस वो अमूल मिल्क का ऐड खत्म करके इट वाज डन, एंड फिर मुझे ऑलमोस्ट 8 9 मंथ्स एकदम सब चीज से अलग रहना पड़ा। तो मेरे अच्छा। जितने प्रोजेक्ट्स थे, जो हम्म, मुझे इंडिविजुअली मूवी ऑफर्स आए हुए थे कोरियोग्राफी के, वो हम्म, सब धीरे धीरे निकलते चले गए। और उस समय रेमो एंड बॉस्को सीजर और हम्म, ये लोग सब, दे वर जस्ट कमिंग अप, हम्म, Terrence, they were all the newcomers. Sandeep हम्म। Soparkar bhi meri academy. Noida, Sandeep Soparkar had come to Noida and affiliated with me for his performances and workshops. ओ So रियली, वाओ। Sandeep Soparkar was also coming up. So everybody was somewhere coming up. So all हम्म। my projects went to these ओके, people. ओके। So then my team also realized कि पता नहीं if I'll be coming back or या, not. So या। they joined them. So by the time it was done, and थोड़ा वो depressive phase आ गया था, श्योर, या। and ये हो गया था कि अब आप नहीं करोगे डांस वगैरह कुछ भी। हम्म। तो देन वो मन उखड़ सा जाता है ना, तो एक अच्छा, हाँ। जब कर ही नहीं सकते कुछ भी तो फिर क्यों, हम्म। देन आई सोल्ड माय अपार्टमेंट एंड एवरीथिंग इन मुंबई, एंड आई शिफ्टेड टू न्यूजीलैंड। में, इंडिया में ही नहीं रहना, क्योंकि इंडिया में रहूंगा तो वो याद बग जो आएगी। है ना, वो यस। बॉलीवुड का वो नहीं जाएगा। करेक्ट, So करेक्ट, I करेक्ट। moved out to New Zealand, but still ओके। वहां जाकर के people recognize, and then वहां पे भी ड्रामा एंड डांस शुरू हो गया। फिर वहां पे भी डांस एकेडमी भी खोल दी थी, वहां पे people were like, yeah, you teach us dance। ओके, तो वो चल पड़ा वहां से। Yeah, ओके। but I was more concentrating on my corporate aspect of food safety and food critiques। उस समय वो ज्यादा उधर हाँ, कंसंट्रेशन चला गया। आई अंडरस्टैंड। एंड अब नाउ आई थिंक वापस यू, आकर, या, नाउ अभी आप शिफ्ट हुए हो बिकॉज यू वांट टू बी विथ योर पेरेंट्स एंड yeah, yeah, yeah. टेक केयर So ऑफ after देम। New Zealand, I was almost 6 years in Dubai. Then I went to Portugal. Then I lived in Portugal. And so ओके। now, a year and a half ago, I just came back to India. Now I'm in India with my parents. Or beach mein on and off, I used to keep coming, keep going, keep coming, keep करेक्ट। going. And theaters, जैसे सोहेला जी के साथ मैंने बताया, I used to do a lot of theater. So we kept doing. So I did not let my this thing die. So I kept on doing theaters. तो डांस से ज्यादा फिर मैंने सिंगिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, तो हम्म, मेरे सिंगिंग शोज ज्यादा शुरू हो गए डांस से हम्म, ज्यादा। हम्म। तो वो सिंगिंग के ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, एक्टिंग के ऊपर किया, थिएटर्स में ज्यादा किया। तो ओके। उस एस्पेक्ट को मैंने ज्यादा पुश कर दिया। या, Wow, Avigal, what an inspirational story, yeah. I mean, it's there's so much to learn while listening to what you've achieved, what you went through, what is your journey. And I think that one episode of accident, and then again picking up, and then या। still doing things, that's really amazing. Kudos, सो wonderful. इनफैक्ट 2014-13 में आई वाज डूइंग अ बालाजी शो, Okay. एंड आई वाज द मेन विलन इन दैट। और शो अच्छा। के दूसरे ही, मतलब शूट के दूसरे ही दिन, बिकॉज ऑफ द नी, मेरी Hmm. ऑलरेडी बैक वगैरह वीक थी, तो सेट पे ही मुझे स्लिप डिस्क हो गया और sciatica हो गया। Oh सो shit. देन आई हैड टू लीव दैट। तो नाउ आई हैव लाइक अ सर्वाइकल टू लंबर, आई हैव माई कोलैप्स डिस्क, एंड Hmm. प्लस आई हैव माई नी इंजरी। तो बट स्टिल आई एम डूइंग इट।
Hey, that's the spirit. That's the spirit. Yeah, That's, yeah, I think agreed. that's what people should learn. You know, if they're watching this, they should learn that how to stay motivated, how to stay positive, because you've gone through so much and you're still, I think, still banging. You know, huge. As I said, never have an excuse, have a reason. तो जब रीजन था Exactly. तो मैं छोड़ दिया था, लेकिन अब जितना कर Uh, सकते उतना तो कर ही रहे, उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है। no, that is amazing. I remember आपने बताया था मुझे about your singing, you know, and about falsettos that you sing. Voice of Sharda is something that आपको खिताब मिला न्यूजीलैंड में. Yeah. Why don't we switch gears and listen to something like whatever आपके दिमाग में कुछ है तो गाइए अरे प्लीज. ओके। ओ ओके, एक गाना जो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, वो लता दीदी का एक गाना है, क्वाइट अ पॉपुलर नंबर, सो आई ट्राई टू सिंग एंड Let's do that. हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो Wow. न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। क्या बात है यार, amazing. Couldn't थैंक यू। recognize that it is you. Like, it's थैंक not यू। easy to sing like this. Did you practice or it's just natural? How did it It was happen? actually natural, but then, of course, to refine it, I had to practice. Hmm. So this journey also started in Bengal. तो वहाँ पे Okay. दुर्गा पूजा होती है, बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो दुर्गा पूजा के कल्चरल इवेंट्स में तो ऑर्केस्ट्रा वालों को तब बुलाया जाता था, अभी भी Hmm. बुलाते हैं लोग। तो उसमें मिलन सिंह, अगर आपको मालूम है, शी सिंग्स इन फॉल्सेटो वॉइसेस, और उन्होंने Ah, इसको बहुत okay. फेमस किया है। तो मिलन Okay. सिंह इज अ वेरी पॉपुलर नेम एक्चुअली, शी Okay. इज बिग नेम। Okay. तो तब मिलन सिंह वो 16-17 ऑफ एज। तो वो आई थी एंड शी सैंग, उस जमाने का गाना बड़ा हिट था, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। एंड Hmm. उन्होंने वो डुअल वॉइस में गाया था। अच्छा. एंड पीपल वाले कि ये छोटी सी लड़की कैसे ही गा रही है लड़के की आवाज में। तो मैं कहा क्या हुआ? Ah, इसमें कोई okay. भी गा सकता है, आई कैन सिंग इन अ फीमेल वॉइस, और वो मैंने शुरू किया Hmm. एंड गॉट अप्रिशिएटेड। फिर अच्छा. उसके शोज होने शुरू हुए, देन आई स्टार्टेड रिफाइनिंग इट इवन फर्दर। देन आई Wow. स्टार्टेड कि अच्छा कौन से सिंगर को पकड़ना है, कौन से सिंगर के स्टाइल को पकड़ना है। देन आई Hmm. स्टार्टेड वर्किंग ऑन लता दीदी, आशा जी एंड शारदा जी जस्ट हैपेंड। एंड Hmm. हाउ पीपल यूज्ड टू लव कि शारदा जी की आवाज आपकी बड़ी मिलती है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो या, Wow. 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 Thank you for singing, and it was lovely, lovely to hear you. थैंक यू। It was as I would say beautiful, as the original. So थैंक यू, मजा आ थैंक गया. यू, दैट्स अ मजा आ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। गया. Okay, so let's talk थोड़ा बहुत और घुसते हैं आपकी कोरियोग्राफी जर्नी में, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ थिएटर आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. कुछ और डिटेल्स में आप कुछ ऐसे आर्टिस्ट जिनके साथ आपने काम किया हो, या कुछ शोज जिन पे आपने काम किया हो, कुछ भी ऐसी चीजों के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ या उन उन सेट्स पे. या ऑनेस्टली जिनके साथ भी मैंने काम किया, दे हैव बीन वंडरफुल पीपल। आई हम्म. मीन, जैसे सरोज जी के एक इमेज है कि बड़ी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है. कोरियोग्राफर थी। यू नो, हम्म. यस, शी वाज स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। हम्म. स्ट्रिक्ट इन द सेंस डिसिप्लिन्ड, हम्म. यू नो, कि ये टाइम है तो वो टाइम है, हम्म. ये काम करना है तो वो करना है, हम्म. यू नो। एंड अगर एक्टर कोई एक्ट्रेस को कोई स्टेप दिया है, वो होना चाहिए और हम्म. उनके मुताबिक ही होना चाहिए। हम्म. तो शी वॉज स्ट्रिक्ट इन दैट वेज।
तो वो चीज मैंने उनसे डिसिप्लिन काफी सीखा। उन्होंने उनसे मुझे बहुत टेक्निक्स पता चली, कैमरा प्लेसिंग, ये सब चीजें उनसे मैंने काफी कुछ सीखा था। अच्छा। और शी वॉज वेरी अप्रोचेबल। उनको आप मतलब मैं कभी भी उनको अप्रोच करके कुछ भी पूछूं, हम्म। कभी ये नहीं होता था। और लोगों को लगता था कि शी इज नॉट अप्रोचेबल, बट आई फाउंड हर टू बी वेरी अप्रोचेबल। तो हम्म। उनके साथ बड़ा अच्छा रहा। और एशली के साथ अगेन वेरी वेरी हम्बल, वेरी स्वीट पर्सन। और हम्म। आज भी मतलब अभी भी मैं बॉम्बे गया था तो एशले की उसमें गया था, एकेडमी में। हम्म। एंड तो उस समय जो हमारे साथ एक स्टूडेंट था, जेसन, ही इज हम्म। नाउ मैनेजिंग द मुंबई सेंटर विद अच्छा। एशले। तो अच्छा। वी वेंट टू अ एडवांस क्लास जो इंस्ट्रक्टर्स की क्लास होती है। तो हम्म। उसमें जेसन took me and introduced to the students and he's like, guess who is he? And the students were like, who's he? Who's like, no, no, हम्म। guess who Ashley keeps talking about? And everyone, the Pizza Hut guy. I was like, what? Pizza Hut guy? वाओ। I mean, what is this? Okay, Ashley still talks about your journey and your story, that how from Pizza Hut you reach where, you know. हम्म। I वाओ। was like, seriously, you know, so, सो गुड, so, सो गुड। and we are still, Abhi, in fact, just last 2 weeks ago, Ashley has formed some group about some dancers and he हम्म। invited me to be a part of it. So, अच्छा। he's again a very wonderful person. संदीप सोपाटकर के साथ काम किया है तो वेरी नाइस एंड अ वेरी डियर फ्रेंड, आज भी हमारी हम्म। फ्रेंडशिप काफी है। और सुधा जी के साथ, हम्म। सुधा चंद्रन, उनके साथ मेरे रिलेशंस बहुत फैमिली जैसे हैं, वेरी वेरी अच्छा। डियर फ्रेंड। अच्छा। एंड शी हैज बीन अ बिग 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 टाइम इंस्पिरेशन टू मी इन माय लाइफ। हम्म। तो we share almost a similar story. So, हम्म। करेक्ट, करेक्ट, so करेक्ट, she करेक्ट, या। was very, very inspirational. तो मैं हमेशा उनको देख करके एक मन में मोटिवेशन होता था कि नो, करेक्ट। इफ शी कैन आई She कैन, can do it, of course. यू Like नो। तो she does not have one leg. Like you at least या have या it. You just have a या problem in the knee. Like this, आई नो। तो इनके yeah. ऊपर डिस्कशन भी हुआ था हमारा। Hmm. तो तब मैंने ये बोला था कि एक्चुअली विद द नी इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी नाउ, Difficult. क्योंकि वो नी के ऊपर आपका प्रेशर आता है, यू नो। हाँ, हाँ. सो उस पे बट स्टिल आई मीन, एंड शी इज मतलब शी इज एन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, अ गुड लेडी, अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई मीन शी इज Hmm. सो हम्बल एज अ ह्यूमन बीइंग। आई मीन Hmm. या शी इज अ डियर डियर फ्रेंड। तो अभिषेक के साथ काफी पिक्चरें हो गई। धूम एंड तेरा जादू एंड बस इतना सा एंड मेनी ऑफ द मूवीज। सो Okay. या वाशु भगनानी के साथ इट वाज वंडरफुल। ही वाज वेरी स्वीट पर्सन ऑन द सेट्स ऑलवेज। बट हाँ, कभी कभी जैसे प्रहलाद कक्कड़, आई टोल्ड यू, ही वाज Hmm. एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद, यू Yeah. नो। बट देर आर सर्टेन बिटर एक्सपीरियंसेस समटाइम्स, यू नो। कभी कभी आपको चैलेंजेस का भी फेस करना पड़ता है, कभी ऑल्टर ईगो पास सामने आ जाती है किसी की, यू नो। सो वो भी चैलेंजेस होते हैं, बट देन यू हैव टू जस्ट डू योर जॉब एंड मूव ऑन। आप उन पॉलिटिक्स और जेलसी और इन सब चीजों में ना Yeah. पड़ के, Yeah. क्योंकि Yeah. राइवलरी देखिए सब जगह होती है, यू नो। Hmm. एंड उस समय भी was so many choreographers coming up, and Hmm. so that rivalry was there also, but with some people it became a very healthy rivalry, you know। तो कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो but some incidences were bitter and sour, Hmm. but you take it with a spoonful of sugar and just let it go, you know। तो वो experiences सब लोग झेलते ही हैं। Yeah, I think it's part of it. It's just corporate में थोड़ा smoothly होता है और probably दूसरी इंडस्ट्रीज में बहुत ही openly होता है, but होता सब जगह कॉर्पोरेट्स है। में बहुत डिप्लोमेटिकली होता हाँ, बहुत ही है। शुगर कोटेड वे में होता है। यहाँ पे बहुत एकदम आउटरेज में होता है, सीधा। बिल्कुल इट्स राइट देयर ऑन योर फेस, यू नो। करेक्ट। तो वो है इस, और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी इंडस्ट्री में तो ये है। और हम्म। स्पेसिफिकली आई रिमेम्बर जब पेज 3 रिलीज हुई थी, हम्म। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स फैमिली, अरे तुम्हारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ये होता है, वो हाँ। होता है। मैं कहा हम्म। ऐसा है, ये इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये सब जगह सब होता जगह है, होता है, यू नो। एग्जैक्टली। सिर्फ यहाँ पे कैमरा लेके लोग घूमते रहते हैं ना, तो करेक्ट, सबको एक्सपोज हो जाती है सब चीजें। करेक्ट, करेक्ट। पेपराजी घूमता है तो एक्सपोज हो जाती है चीजें, कॉर्पोरेट में एक्सपोज नहीं हो पाती, बस वही डिफरेंस है। ट्रू। आई सो थिंक ट्रू। दैट इज व्हाई मदर अगेन मेड कॉर्पोरेट आफ्टर पेज 3।
to showcase the corporate कि world. भाई देख लो यहाँ पे भी ऐसे ही हाल यहाँ पे भी होता है. है. Seriously, I mean, we both have done our own corporate journeys, and we Yeah, understand, yeah. so we know what we're talking about. Yeah, you've been there, you know it. Yes, Yeah, yes, yes. No, I completely understand. I think that's amazing. And now, अगर हम corporate journey की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका जो फूड रिलेटेड जो आपका वर्क रहा है, और फूड सेफ्टी, फूड क्रिटिक, उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो कैसे, मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया, शायद वो न्यूजीलैंड गए तब वो थोड़ा सा ज्यादा शुरू yeah. हुआ, Yeah, बट उसमें भी आपने बहुत एक्सेल किया, लाइक केपीएमजी जैसी कंपनी में डायरेक्टर का right. रोल बहुत सीनियर रोल है। Yeah, नाउ अगेन एफएसएसआई, एफएसएसएआई एंड सो मेनी yeah. थिंग्स, हाउ डिड दैट हैपन? So, as I told you, I started my journey with Pizza Hut in the food domain, and then five-star properties में भी काम किया, and then I हम्म. moved to New Zealand, and there I was working with McDonald's, and तभी फूड रेगुलेटरी बॉडी के साथ भी एफिलेट हुए, एंड वहाँ पे अच्छा, फूड सेफ्टी के कोर्सेज, मैंने जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोर्सेज थे वो न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम किए थे. अच्छा, And अच्छा, that is अच्छा. how I got to know कि food is not only about cooking and serving the food, but there's a या, lot more things behind that. You करेक्ट. know, as a microbiologist, of course, you knew, but हम्म. उसके ऊपर क्या है फूड सेफ्टी, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द फूड सेफ्टी विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, हम्म. वो चीजें मैंने वहां पे जाकर के सीखी. और फिर हम्म. वहां पे फूड सेफ्टी के ऑडिट्स मैंने शुरू किए. एंड फिर वहीं पे somebody approached me to review his food of his हम्म. restaurant, हम्म. and that is how I entered into the food critic zone. So as a ओके. food critic bee, I got trained into experiencing different taste buds and how ओ. to analyze and assess different tastes. और उसके लिए wherever I have traveled in the हम्म. world, हम्म. I go and eat on the streets of the countries so that I हम्म. get the authenticity of the food, अच्छा. कि लोकल इंग्रेडिएंट्स क्या इसमें यूज हाँ, होते हैं. हाँ, हाँ. तो अभी यही चीज मैंने जो अभी आपको बोला कि लास्ट टाइम जब भी मैंने खाना और गाना अपना शो किया, तो हम्म. उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी विद एन एग्जांपल ऑफ जर्क चिकन एंड लाल मांस. हम्म. तो जैसे जर्क चिकन के अंदर अगर स्कॉच बोनेट पेपर्स नहीं है, इट इज नॉट अ हम्म. जर्क चिकन. तो अच्छा. आप जर्क चिकन कहीं पे भी खा सकते हो, इंडिया में भी आपको जर्क चिकन कहीं पे भी मिलेगा, बट जमैका में जो ओरिजिनल जर्क चिकन बनता है उसमें स्कॉच बोनेट पेपर्स जाते हैं जिसका मेन फ्लेवर होता है. वैसे ओके. ही लाल मांस आप कहीं पे भी होटल में मिल सकता है, लाल मांस आप कहीं पे भी खाते हो, लेकिन हम्म. लाल मांस को आप लाल मांस तब तक नहीं बोल सकते जिसमें उसमें मथानिया मिर्च, जो जोधपुर की मिर्च होती है, वो नहीं है तो लाल मांस नहीं है वो. क्योंकि अच्छा. लाल मिर्च का जो लाल कलर है वो उसमें से आता है, और जो स्वीटनेस और एसिडिटी आती है वो चिलीज की, वो उसी चिलीज से आती है. सो अच्छा. सो वो चीजों का स्टडी, एंड देन और ये, getting. सॉरी टू कट यू, ये जर्क चिकन होता क्या है एग्जैक्टली? आई मीन, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस टर्म अर्लियर, सो. ओह, ओह. बैंगलोर में मिल जाएगा आपको जर्क चिकन फॉर आई विल श्योर. चेक इट आउट, या. So jerk chicken is a Jamaican chicken. So अच्छा. it is a grilled chicken which is marinated of overnight, ओके. and उसमें scotch bonnet peppers का marination जाता है, बाकी मसाले भी होते हैं. So अच्छा. it's a blend of the Jamaican and the African flavors, because it was ओह. made by the African tribes, जो कुछ escaped tribes थे, maroon tribes. They हम्म. influenced the Jamaican cuisine with their African style of cuisines. तो ओके. और उसको वो लोग सर्व करते हैं विद द रेड बीन राइस. सो ओके. दैट इज द स्टेपल ऑफ जर्क चिकन, एंड द रेड बीन राइस इज द जमैकन फूड, ओके. द. गॉट या, इट. गॉट द इट. jerk chicken is very renownedly famous in all parts of the world. बट वहां पे मैं यही पूछता हूँ शेफ को कि इसमें स्कॉच बॉनेट पेपर्स हैं कि नहीं है कि नहीं? ओके. है. नहीं तो jerk chicken मत बोलो इसको. So yeah, so it's really nice, you must try it. आई Yeah. विल, आई विल. एंड नाउ आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट अगर कभी भी हमारा मिलना हुआ और हम कहीं गए, तो आई नो कि आई एम गोना बी इन फॉर अ ट्रीट, लाइक बहुत Yeah, कुछ अलग yeah, अलग yeah. चीजें आई आई विल लर्न विथ यू. Absolutely. तो मेरा वही है, तो उसकी बहुत डिटेल मैंने हर रेसिपी की, हर फूड की स्टडी करी है कि ओके. हर कुजीन कहाँ से आई है, क्या है उसकी ऑथेंटिसिटी, क्या है एंशियंट टाइम्स में क्या कुकिंग मेथड्स यूज होते थे. एंड हम्म. देन आई सी कि अब उसको अगर कोई बना रहा है तो हाउ ऑथेंटिक इज इट. अब आजकल एक नई चीज हो गई है कि फ्यूजन कर दिया. हम्म. तो ऑथेंटिसिटी किसी को पता नहीं है, तो हम्म. ऑथेंटिसिटी पता नहीं तो इन्फ्लुएंस ले लेकर के उसका फ्यूजन बना दे कि दिस इज इंडो चाइनीज, इंडो हम्म. दिस. हम्म. हम्म. ठीक है, टू केटर द पैलेट ऑफ द लोकल पीपल.
But Yeah. I've traveled across my more than 40 countries now. Hmm. And so everywhere I go, I eat on the streets, get the Hmm. authenticity. And तो उस तरीके से मेरा फूड क्रिटिक का जोन शुरू हुआ and then I started reviewing the food for different restaurants and hotels, started writing about those restaurants. तो वो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. Then I came to Dubai. वहाँ पे I was a general manager for a company. Hmm. And again, food safety is very strict in Dubai with the Correct, regulations. correct. Yeah. Then, when I came to India in 2015, I was head of food for BSI company, which is a certification body. Okay. And अभी I got affiliated with FSSAI. तो वहां से मैंने Okay. आपको जैसे बताया, I started the journey there. And that's how this journey just started. So today, by God's grace, quite well known in the food industry in Hmm. India. And people recognize me as a food safety personnel. And yeah, so Awesome. एक ऐसी मेरे दिमाग में, लाइक एज अ, यू वुड से नोवाइस, यू नो, एक क्वेश्चन है कि आई एम श्योर आपने रेवंत का नाम सुना होगा ना, रेवंत who's like an influencer and he talks about फूड में क्या कंटेंट है, यू नो, हाँ कंपनीज हाँ, का, यानी काफी लोगों ने उनको सू भी किया है कंपनीज, क्योंकि दे आर लाइक व्हाई आर यू या स्पिलिंग दीज थिंग्स आउट, एंड आई डोंट नो कितना आपने उन वीडियोस देखे हैं उनके, या वो जो भी है, बट या do you think like that is whatever he's suggesting is right, because there is so much cheating then in the market, you know? See, as I told you, when I shared that platform with Mr. Koval, so I Hmm. discuss about food frauds and food defense. तो फूड फ्रॉड शुरू से है. नाउ व्हाट हाँ. इज अ फ्रॉड? फ्रॉड Hmm. इज बेसिकली आपको धोखा देना, चीट Correct, करना. correct. अब आपने एक दूध मंगाया और दूध में कोई पानी मिला करके दे रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है ना Fraud आपको. है, yes. तो आपने 3 किलो दूध खरीदा लेकिन उसमें 1 लीटर पानी मिला है, आधा लीटर पानी मिला है, Hmm. लेकिन पैसे तो आपने 3 किलो के दिए हैं. Correct. आपने चावल खरीदे, उसमें कंकर मिले 1 किलो, तो चार Hmm. किलो में से 1 किलो तो कंकर ही थे आपके, Hmm. तो वो भी फ्रॉड है. यू Hmm. नो सो ये सब फ्रॉड केसेस होते हैं. Hmm. लेकिन आपने कोई चीज ऐड करी है और वो डिस्क्लोज नहीं किया है Hmm. टू Hmm. द कंज्यूमर, इवन दैट इज अ फ्रॉड. Hmm. व्हाई नॉट टेलिंग द कंज्यूमर व्हाट इट इज? Yes. यू नो तो वो चीज है. अब ऐसा होता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स उसमें सब लिखे होते हैं एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स, कि आपको हाँ. फूड के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं. Hmm. एंड लेकिन अब कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं जिसके कुछ टेक्निकल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो लिखी होती है, प्रिजर्वेटिव नंबर सो एंड सो एडेड. अब Hmm. वो Hmm. नंबर एक कॉमन मैन को नहीं पता है. एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट वुड नो कि ये क्या प्रिजर्वेटिव डला हुआ है इसके अंदर. Hmm. Hmm. Right. यू नो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग जो बताते हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कंपनीज को. इनफैक्ट व्हेनेवर आई वॉच सच रील्स, मैं उसमें एक Hmm. कमेंट जरूर छोड़ता हूँ: Hmm. गिव मी योर फैक्चुअल एविडेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. Hmm. Do you have any factual information about it? If you do not have it, just don't talk about it just to scare the people. तो Hmm. आजकल बहुत से इन्फ्लुएंसर्स का, आई मीन, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, Hmm. बट some influencers have just come out to just showcase their reel and increase their following list and subscription list. और Hmm. उसके लिए they have gone into some topics which is not even their domain. They Hmm. don't have any factual information of such domains, no authenticity of those informations. So I always tell the consumers that listen to everything, but Hmm. always believe when you have a factual information about it. Otherwise, it's good to watch as an entertainment. Yeah, yeah. Yeah, I think this is a very critical topic nowadays, because काफी सारे एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं जहां पे लिखा है इट्स अ जीरो शुगर ड्रिंक, बट पीछे जाके इंग्रेडिएंट्स में देख रहे हो तो देयर इज शुगर इन इट, यू नो, एंड देयर इज. नहीं, तो उसमें जैसे अगर जीरो शुगर लिखा है तो उसमें ये हम्म. भी पढ़ना है कि वो जीरो एडेड शुगर लिखा है कि नहीं. अगर उसमें जीरो एडेड शुगर लिखा है, इसका मतलब देयर हैज नो शुगर बीन एडेड. एडेड. वॉट एवर शुगर इज देयर, इट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ द शुगर. ओके. आप अगर रोटी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, उसमें भी शुगर है. शुगर है उसमें, आप करेक्ट. फ्रूट्स खा रहे हो, उसमें शुगर है. दूध पी रहे हो, हम्म. उसमें शुगर है. आप कुछ भी खा रहे हो, उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है. हम्म. सो दैट इज योर नेचुरल शुगर काउंट. हम्म. अगर उन्होंने लिखा है नो एडेड शुगर, तब आप ये देखिए कि उन्होंने कुछ ऐड करी है शुगर की नहीं करी है. हम्म. यू नो तो वो चीज को भी एनालाइज करना पड़ता है, जो एक कॉमन मैन उसको इतनी बारीकियों में नहीं देखता है. समझ नहीं जैसे आता है. बॉर्नवीटा है, कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स हम्म. है,
ये लोग हमेशा से ऐड आए करते। हैं कि हम लोग हेल्थ ड्रिंक्स हैं, हाँ, है ना। हम बूस्ट है तो आप, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई माय एनर्जी, एनर्जी। यस। बूस्ट पीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। अरे यस। क्यों नहीं मिलेगी, उसमें इतनी चीनी मिली हुई है तो क्यों नहीं शक्कर है, मिलेगी आपको एग्जैक्टली। एनर्जी। More than 50% is sugar, right? It's, Yeah. I don't know So exact from numbers, but FSSAI, then we had a disclaimer to all these organizations हाँ, that आप इन प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक के टैग से नहीं बेच सकते नहीं हो। बेच सकते, करेक्ट। These are not health drinks. नॉट These are हेल्दी, या। flavored drinks. यस। You know, ठीक है, आपने उसमें न्यूट्रिशन ऐड किया है, कॉम्प्लान में हम्म। बहुत सारे न्यूट्रिशन एडेड है, आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन सब ऐड किए हैं, बट साथ में हम्म। आपने इतना सारा शुगर भी ऐड किया है। सो इट कैन बच्चों नॉट बी को, कॉल्ड एज अ हेल्थ सीरियसली, ड्रिंक। यू नो, सीरियसली। पीपल बोलते हैं एडिटेड ड्रिंक्स मत पियो, जूसेस पी लो। हाँ, अरे उसमें तो भी है जूस इतना। में भी तो शुगर ऐड हो रहा है ना इतना। करेक्ट, तो वही करेक्ट, है, अनलेस यू करेक्ट। आर स्क्वीजिंग द जूस राइट इन योर हाउस, हाँ, या तो एग्जैक्टली। वो ठेले के पास जा रहे हो और उसको बोल रहे हो भैया एक जूस निकाल के दो। जूस निकाल, एग्जैक्टली। ट्रू, तो ट्रू। या मुझे सडनली याद आया अपने बचपन में मैंने भी बहुत बॉर्नविटा पिया हम लोग तो बोनविटा कटोरी में लेके है। खाते थे। मुझे इतना अच्छा लगता था बोनविटा। ओह गॉड, ऐसा फील करते थे जैसे हाँ हमारी को बहुत एनर्जी आ रही है। आई नो, इट वाज चॉकलेट बेसिकली, या इट वाज या जस्ट या चॉकलेट, नथिंग ये एल्स। चॉकलेट। ओह मैन, क्रेजी। ये सब चीजें अब जब थोड़ा सा एजुकेटेड हुए और थोड़ा फूड की तरफ भी ध्यान गया, हेल्थ की तरफ गया, तब समझ में आया कि पहले या तो अपना इंडिया में कल्चर ऐसा भी है कि हमको ये भी नहीं पता होता कि शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। लाइक हम लोग तो भर भर के खाते हैं, अरे मिठाई खाओ, जलेबी खाओ। यू नो। इनफैक्ट जैसे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज आप चीनी छोड़ दीजिए, हम्म। लेकिन फिर भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा। हम्म। भाई आप इतना रोटी चावल जब खाओगे, इतना आलू खाओगे, आम खाओगे, हाँ, कहाँ से शुगर कम हो रही करेक्ट, है? करेक्ट, 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 करेक्ट। यू नो, एंड डायबिटीज का कॉज इज नॉट हाई इंटेक ऑफ शुगर, हम्म। द रूट कॉज इज हाई इंटेक ऑफ कार्ब्स। ओ रियली? यस, आई डिडंट नो दिस। इफ देयर इज अ डायबिटिक पर्सन, आप उनके हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स को किल कर दीजिए और हम्म। एडेड शुगर को किल कर दीजिए, एंड फ्रूट्स में शुगरी फ्रूट से सिट्रस फ्रूट पे शिफ्ट हो जाइए। सो नो मैंगो और लाइचीज और सच, ग्रेप्स और सम फ्रूट्स। आप देखिए 3-4 महीने में ही आपको डायबिटिक पेशेंट की कंडीशन के अंदर इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। आई थिंक ये बेसिक चीज की नॉलेज नहीं है लोगों को, बिकॉज वो रोटी आई तो अभी भी डोंट खा ईट ही रहे हैं। कार्ब, मतलब कार्ब में मेरा बहुत कम कार्ब्स होता है, जैसे एक हम्म। टोस्ट, बर्न टोस्ट खा लिया या एक हम्म। मारी का बिस्किट खा लिया, बट रोज मेरा रोटी चावल, आई एम नॉट इनटू अच्छा। सच। या वाओ, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप जो भी देखेंगे उन लोगों को एटलीस्ट फायदा होगा इससे। वेरी इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली, पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज व्हाट इट इज, इंडिया में अभी ना creating the awareness is not there, यस। you know। कॉर्पोरेट्स में भी हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग बोलते हैं अच्छा ट्रेनिंग करके आए हो, चलो टाइम वेस्ट कर लिया, अब काम करो। पीपल कंसिडर ट्रेनिंग्स टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ, सही यू बात नो। है। बट लोग भूल जाते हैं कि आप जिस पोजीशन पे आज बैठे हो, चाहे सीईओ पोजीशन पे या किसी भी, आपने अपनी लाइफ के पिछले 25 साल जो शुरू के थे वो सिर्फ हम्म। ट्रेनिंग करी है आपने लाइफ में, करेक्ट, और कुछ नहीं करा था। उसी के करेक्ट, बदौलत आप आज यहाँ बैठे हो, करेक्ट, 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 ट्रू। यू नो। बट तो वो ट्रेनिंग का कल्चर अभी इंडिया में उतना डेवलप्ड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इसलिए आप एमएनसीज क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेजर इन्वेस्टमेंट इज इन मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग। एल एंड डी इज अ या। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट्स, या। यू नो। या, ऑसम, बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया था कि अराउंड 2014 आपको आध्यात्म की प्राप्ति हुई थी, और आप स्पिरिचुअल गुरु बने उसके बाद। सो द क्वेश्चन इज कि एक तो ऑफ कोर्स ये कैसे हुआ, और दूसरा ये, क्योंकि सब सुना बहुत है कि मेरे को इस साल में आध्यात्म की प्राप्ति हुई, उस साल में उनको हुई, लाइक लॉट ऑफ गुरुज हैव सेड दिस, बट उसका मतलब क्या होता है? कि क्या फील होता है, या क्या आपको समझ में आया कि हाँ, आई हैव गॉट एनलाइटेंड टुडे?